یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوان نہیں جانتے، اسکول کے بچے خاص کر کے نہیں جانتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیسے دین کی طرف لائیں، یہ ہماری آپ سے کوشش جاننا ہے۔ چاہیں گے سر کہ یہ جو دعوتی کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں تک آپ پہنچ رہے ہیں، لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں دعوتی کام میں، تو یہ آپ کس طرح کر رہے ہیں، کس حساب کتاب سے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں یا ان تک پہنچتے ہیں، یا گاؤں گاؤں قریہ قریہ محلہ محلہ پروگرام سجاتے ہیں؟ کس حساب سے کرتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں چھوٹی جو تفصیل بنیادی سے چیزیں بتائیں۔ ہیں جو ہمارے نوجوان نہیں جانتے، اسکول کے بچے خاص کر کے نہیں جانتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیسے دین کی طرف لائیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ گاؤں گاؤں جا کر کے، ہمارا اپنے ذاتی طور پر ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلمان اگر اسلام کو صحیح سے جان لیں، ایک مسلمان کو دیکھ کر کے غیر مسلم ہمارا سمجھے کہ ہمارا شیر شاوادی سماج جو ہے، جس کو ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، اور ہمارے گھروں کی شادیاں دیکھ کر کے لوگ اس سے السلام سبق علیکم لیتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے بیچ ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہوا ہوں اور آپ کو بھی روبرو کراؤں گا، جن کا نام ہے حضرت مولانا عبد الواحد بخاری صاحب۔ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کشن گنج میں اس وقت بہت مشہور و معروف ہے، اور لوگ انہیں کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ یہ الہدایہ دعویٰ سینٹر کے نام سے ایک دعویٰ سینٹر چلا رہے ہیں۔ الہدایہ دعویٰ سینٹر جو کہ لوگوں تک رفاہی کاموں میں بھی سرگرم عمل ہے، اور لوگوں کو دعوتی میدان سے جوڑنے کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کام کرتی ہے۔ آج ہم مولانا عبد الواحد بخاری سے جانیں گے الہدایہ دعویٰ سینٹر کا مستقبل کا کیا عزائم ہے، مستقبل میں کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ عبد الواحد بخاری صاحب آپ کے بیچ آپ کو بتائیں گے، تو بتائیے سر آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارے نسیم اختر صاحب جو ہماری تعریف اور تعارف کرایا آپ لوگوں کو، اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں، یہ ان کی بڑکپن ہے، میرے تئیں محبت ہے کہ انہوں نے میری تعریف میں کچھ زیادہ ہی کہہ دیے۔ خیر، ان کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ان کا سوال یہ تھا کہ الہدایہ دعویٰ سینٹر کے عزائم کیا ہیں، الہدایہ دعویٰ سینٹر کے ذریعے سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ الہدایہ دعویٰ سینٹر الحمدللہ چھترگاچھ پاور ہاؤس کے سامنے ہمارا الہدایہ دعویٰ سینٹر ہے، اور یہ الہدایہ دعویٰ سینٹر کا مقصد اور ان کا عزائم یہ ہے کہ ہمارے سماج، خاص کر کے ہمارے اس علاقے میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ ان مسلمانوں کے آبادیوں رہنے کے باوجود سب سے زیادہ بدعات و خرافات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک مسئلے میں آپ جائیے گا تو اس میں صحیح قرآن و حدیث کو آپ اس مسئلے میں اس کے اندر نہیں پائیں گے۔ تو ہماری ٹیم کی یہ کوشش رہے گی کہ ہم لوگ ایک ایک چیزوں کو، جو بدعات و خرافات لوگوں کے گھروں میں، دلوں میں گھس چکا ہے، تو ان بدعات اور خرافات کو دور کیسے کریں۔ ہماری ٹیم ان کے لیے بالکل سر جوڑ کر کے ہم لوگ ان کے لیے تیار ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کیسے کریں کہ ہمارا سماج سے اس طرح کی بدعات دور ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو دو تین باتیں بتا دوں کہ سب سے پہلا کہ جو محرم کا مہینہ اسلامی مہینہ آتا ہے، ہمارے مسلمان نوجوان بھائیوں میں سے مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ محرم کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے اور کس وقت آتا ہے، معلوم نہیں چلتا ہے ان کو جب ڈھول تاشے کی آواز سنائی دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو لوگوں کے اندر آ چکے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اس علاقے میں عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی کے نام پر لوگ اتنے دن بدن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، خرافات اور گھر کر چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی نہیں جانتے ہیں ان کو ہم لوگ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب چیز صحیح نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سر کہ یہ جو دعوتی کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں تک آپ پہنچ رہے ہیں، لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں دعوتی کام میں، تو یہ آپ کس طرح کر رہے ہیں، کس حساب کتاب سے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں یا ان تک پہنچتے ہیں،
या गांव गांव करिया करिया मोहल्ला मोहल्ला प्रोग्राम सजाते हैं, किस हिसाब से करते हैं, जरा इसके बारे में तफसील से बताइए। इस सिलसिले में मेरा हम लोगों का हमारे टीम का एक तो ये जो हमारा दावा सेंटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे खास करके कुछ नौजवान लड़कों को ला करके महीने में हफ्ते में एक प्रोग्राम रखते हैं। उसके अलावा कोई बड़ी शख्सियत आलिम दीन जैसे हमारे फजीलत शेख ज़ैनुल आबिदीन सनावली नाजिम जिली जमात अहले हदीस किशनगंज के, खास करके उनको ला करके हम लोग बैठाते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि दीन को छोटी छोटी जो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवान नहीं जानते, स्कूल के बच्चे खास करके नहीं जानते हैं, तो उन लोगों को कैसे दीन की तरफ लाएं, ये हमारी कोशिश है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग गांव गांव जा कर के, हमारा अपने ज़ाती तौर पर हमारा मानना यह है कि मुसलमान अगर इस्लाम को सही से जान लें, एक मुसलमान को देख करके गैर मुस्लिम हमारा समझे कि ये मुसलमान है, इस्लाम यही है, लेकिन हमें दूसरे गलत चीज़ों को देख करके वो कह रहा है मुस्लिम मुसलमान ऐसा है। तो ये इन चीज़ों को हम लोग अपने से गांव गांव जा करके घर घर जा करके लोगों को बताएंगे और इन सारी गलत चीज़ों को लोगों के अंदर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गैर मुस्लिम भाई हमारा देख करके हमें खुद इस्लाम का तारुफ उसे बताना ना पड़े, हमको देख करके वो सीखें। आज ये चीज भी देखा जा रहा है हमारे माशरे के अंदर, समाज के अंदर। अब हम खुद को अहले हदीस तो कहते हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों का जो शादी, यानी आप यूं समझे कि हमारी बच्चियों का शादी हम बरेलियों में कराते हैं जो शिरक करने में माहिर होते हैं, मुशरिकीन लोग होते हैं, पीर मज़ारों और न जाने क्या क्या वो लोग गलत करते हैं। तो इसके बारे में भी आप बताइए, समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बारे में, समाज क्या करे, हमारा माशरा अहले हदीस तबका जो शेरशाबादी बिरादरी है खुसूसी तौर पर, इसके बारे में उन लोगों को थोड़ा आगाह करें, रहनुमाई फरमाए। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका ये कि हमारा शेरशाबादी समाज जो है, जिसको हम लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले हदीस हैं। और हमारे घरों की शादियां देख करके लोग इससे सबक लेते थे कि हमारी दूसरे लोग जो हमारा मियाँ समाज है, हमारे इस इलाके में सबसे बड़ी आबादी उन्हीं लोगों की है, सुरजापुरी मियाँ भाई लोगों की। सुरजापुरियों की शादी में, एक शादी में हम लोगों का शेरशाबादी अहले हदीस की बच्चियों की या बच्चे की शादी कम से कम 10 या 15 शादी हो जाएंगे। लेकिन ये देखा देखी आजकल हमारे घरों में भी ये चीज़ आ चुका है कि हम लोग क्या करते हैं, उनका देखा देखी जो सारे जिन सारे खुराफात और बिदात जो करते हैं वो भाई लोग, उनको देख करके आज हमारे फजूल खर्चे हमारी शादियों में भी हो। दूसरी बात आपने कहा कि हमारा शेरशाबादी अहले हदीस जो बरादरी हैं वो अपने बच्चियों की शादी जो मुशरिकीन हैं, बरेली हजरात हैं, जो पीर मानते हैं, पीर पूजते हैं, उन लोगों के घरों में कर देते हैं। ये बहुत तो बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि आदमी कैसे अपने बच्चियों को अपने जीते जी एक मुशरिक घर में जो शिर्क खुलेआम शिर्क करता है उनके घरों में शादी दे देता है बच्चों को। ये बहुत बड़ी अलमिया है। इन चीज़ों को लोगों को गौर करना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने वक्त के खलीफा थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी हैं और ससुर भी हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। वो अपने बच्चियों की शादी, अपनी बेटी की शादी, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी, अपनी बड़ी बेटी की शादी कहाँ करवाते हैं? ज़ुबैर बिन अवाम। क्यों करवाते हैं? वो इतने गरीब साहबी थे, फिर भी अपने बच्चियों की शादी, जिसके घर में हमेशा नौकर चाकर की कमी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों की शादी एक गरीब घर में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के साथ कराते हैं। इसलिए कराते हैं कि ईमान की बुनियाद पर, ईमान, क्योंकि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 अशरा मुबशरा साहबी हैं, उनमें से एक साहबी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी थे। तो मैं आप लोगों को, नाजरीन को खास करके ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक इंसान अगर ईमानदार है, ईमान वाला है, अल्लाह वाला है, एक अल्लाह को मानने वाला है, गरीब भी हो, समाज का गरीब तबका, गरीब लड़का भी हो, अगर वो दीनदार है, जफाकश है, मेहनत कश है, तो अगर आपने इस दीन की बुनियाद पर अपनी बच्ची की शादी करा दी, हो सकता है कि अल्लाह ताला उनको आने वाला समय में इतना माल से नवाजेगा, जैसे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को ऐसे माल दिए थे कि तरका लेने का कोई उनका वारिस ज़्यादा नहीं बचे थे, सिर्फ एक लड़के के। तो मैं
यही कहूँगा कि ईमान की बुनियाद पर अपनी बच्चियों की शादी कराएं, ना कि पैसे की बुनियाद पर अपने बच्चियों को जीते जी आप एक पीर पूजा के घर में शादी करा दें। और सर एक तबका ये भी देखा जाता है हमारी बिरादरी के अंदर, जो कि शादियों में, आजकल के शादियों में खतीर रकम आज लोग खर्च करते हैं, जहेज के नाम पर हो या फिर अपनी बेटियों की बारात के नाम पर हो। लड़कियों की बात कर रहा हूँ सर, जो लड़की के गार्जियन होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो रकम खर्चा करते हैं। लड़के वाले तो करते ही हैं। आखिर ये क्या वजह है? हमारे माशरे का, समाज का ये एक खतरनाक बीमारी बन चुका है लोग। आप इसके बारे में ही बताइए। ये जो आदमी फजूल खर्ची जो करते हैं शादी ब्याह में अपने बच्चियों के, आपने कहा कि बच्चियों के, लड़के लोग तो वलीमा में करते ही हैं, लेकिन बच्चियों के इसमें भी बच्चियों के गार्जियन जो है, लड़की के गार्जियन, वो भी बहुत फजूल खर्ची करते हैं। इलाके के पूरे लोगों को दावत करते हैं, वो भी कर्ज लेकर के। और खास करके मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो खास करके सुरजापुरी पुरियों का इलाका है, उनके यहाँ और क्या होता है कि चुमना का सिस्टम है। पूरे इलाके के लोगों को दावत करेंगे, और दावत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुमना मिलेगा हमको। एक आदमी खाने के लिए आएंगे, 500-1000 रुपया देंगे, और सारा चीज कर्ज में उठा लेते हैं। वो राशन से लेकर के अब मीट मछली हर चीज कर्ज में ले लेते हैं। पंडाल वाले बड़े से बड़े पंडाल लोगों को झूठी शान और शौकत की वजह से कर लेते हैं, क्योंकि उसको बाद में शाम को जब हिसाब करेगा, मैंने अपने ही जानने वालों में से एक साहब हमारे इस इलाके के, वो अपने बच्चियों के उसमें चुमना में 4 लाख रुपया उठाए। 4 लाख रुपया चुमना, आप यकीन कीजिएगा नहीं। अच्छा। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? चुमना मिल जाए लोगों को, इसलिए दावत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ये गलत है। आप लोगों को दावत करें, इतनी ही दावत करें जितनी आपके अंदर इस्तेदात हो। एक तो ये है कि बच्चियों की शादी में आपको कोई खर्च नहीं करना होगा, कोई ताम झाम नहीं करना होगा। आप बिल्कुल सिंपल से शादी कराएं, कम खर्च जिस शादी में होगी उस शादी में बरकत है। हमारे नौजवान में क्या होता है, नौजवान पूरी जवानी के आलम में वो कमाता है और उस पैसे को जमा करके रखता है, और 40 साल 35 साल की उम्र में शादी करेगा, सारे पैसे उस शादी में लुटा देता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कम पैसे में, कम खर्च में आप शादी करें, उसमें बरकत है। चलिए आज हम यहीं तक अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। फिर आइंदा हम फिर इसी मसले पर, शादी ब्याह की गलत रस्म, इस मौजू पर हम आपके बीच वीडियो लेकर आएंगे। तो अब आप और कुछ बोलना चाहे तो बोल दीजिए, फिर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बहुत ही लोगों के, जो आवाम के मसले को हमारे अल हिदाया चैनल के ज़रिए से, अल हिदाया दावा सेंटर के ज़रिए से लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। और तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि हमारा अल हिदाया दावा सेंटर के साथ जुड़े। इंशाअल्लाह आने वाला समय में अल हिदाया दावा सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लोगों को लेकर के चलेगा। गांव-गांव में जो गलतियां, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम लोग इंशाअल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।